फिर बात ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये एक एक इनपुट लेयर है, और एक ये जो है इसकी हिडन लेयर कह रहे हैं, ये जो है सेंटर वाली लेयर है, और एक ये आउटपुट लेयर है। तो अब ये इसको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करेगी कि किस तरीके से जो है यहाँ पे वेट्स जनरेट हो रहा है। फिर हम दोबारा वापस बुक के ऊपर जाएंगे इस वीडियो को देख के। मैम स्क्रीन शेयर नहीं करी मेरे ख्याल में। स्क्रीन भी शेयर नहीं की है और आवाज भी शेयर नहीं की है। रुक जाओ। अच्छा। हाँ। Welcome to the Steeplesard series, where we deliver bite-sized, practical, and intuitive explanations on the most common terms and concepts in the field of deep learning. I'm Mandy, and the topic of this episode is the weights that are present within an artificial neural network. An artificial neural network is made up of multiple processing units called nodes that are organized into layers which are connected to each other by weights. Each weight in the network has a corresponding value, which can be thought of as representing the strength of the connection between the two nodes that it connects. When input is passed to the input layer of a neural network, the input data is eventually passed to the next layer via the connections here. These connections have weight values for which the input data will be multiplied by before being passed to the next layer. The values assigned to each of these weights in the network are first randomly initialized. Later, during some training process, the network will learn the optimal values for these weights over time that will lead to the most accurate mapping of the input data. यहाँ पे समझ में आ रहा है कुछ? थोड़ी कुछ बात क्लियर हो रही है? यही बता रहे ना कि जो हमारे पास इनपुट डेटा आता है वो वेट बेसिकली वो वैल्यूज होती हैं जिनसे वो मल्टीप्लाई होता है जाके, और उसकी आगे की प्रोसेस उसकी ये उसकी देखो, एक नोड से फर्स्ट नोड से सेकंड लेयर की फर्स्ट नोड पर जो डेटा जा रहा है, या फिर वो उस जो डेटा जा रहा है उससे जो है वो वेट्स जनरेट हो रहा है। जो क्वेश्चन था ना कि ये वेट्स क्या होते हैं, तो उससे वेट्स जनरेट हो रहा है, और उस उन वेट्स को भी आगे जाके ये मजीद मे बी इस वीडियो में बताए या ना भी बताए, लेकिन इस उसको भी हम पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से होता है। लेकिन अभी बेसिक चीजें ही बता रही है, वही देखते हैं। To the correct output classes. We can zoom in on this example to see how exactly the weights affect the output of given nodes present within a hidden layer. In this example, we are passing the height and weight of individuals as input to the input layer. Now we have randomly initialized the 6 weights in the network that connect the input layer to the first hidden layer. Now, this first hidden layer is a fully connected layer. So for the fully connected layer, each node processes its input by taking the weighted sum of the inputs using the weights that connect the inputs to it. So for this first node, for example, we have 160 multiplied by 0.35 plus 55 multiplied by zero point 0.2, which gives us 67 as the output for this node. This weighted sum is considered the pre-activation output of this node, and as we'll later learn, we end up passing this value to something called an activation function, which will then yield the final output from this node. So for a fully connected layer, then we can समझ में आई है ये वाली बात?
यहाँ पे बीच में ये एक एक्टिवेशन फंक्शन की बात कर रही है। जब यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर से जो भी हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं अलग अलग, उन नंबर से वेट्स जनरेट हो रहे हैं। जनरेट होने के बाद हमारे पास एक स्पेसिफिक आउटपुट आ रहा है। अभी आउटपुट लेयर पे नहीं जा रही, एक स्पेसिफिक आउटपुट आ रहा है जो सेकंड लेयर के अंदर आ रहा है। वहां आने के बाद उसके बाद जब ये सारी वैल्यूज कंफर्म हो जाएंगी तो फिर एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है जो वैल्यू कहलाता है, जो इन सब वैल्यूज को 0 से 1 के बीच में ले आता है। और उसके बाद हमारी जो आउटपुट होता है, जो लास्ट लेयर होती है, वो जनरेट होती है। ये मुश्किल है समझना थोड़ा सा, या समझ में आ रही है बात? कुछ थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हो तुम लोग? हाँ, थोड़ा थोड़ा भी आ जाए ठीक है, क्योंकि ये बार बार मैं बताऊंगी। अच्छा, ये बहुत आसान वीडियो है तो इस वीडियो को मैं भेज भी देती हूँ दोबारा भी। ये देखो, ऊपर इसने ना ये पूरी मल्टीप्लीकेशन करके भी दिखाई है। 160 को मल्टीप्लाई किया है 0.35 से, उसके बाद प्लस किया है इन दो वैल्यूज को, जिसका आउटपुट ये कहती है कि 67 आ रहा है। यहाँ पे कोई वैल्यू माइनस में थी, इसको दोबारा देखना। See that the processing that is done by each node is just taking the weighted sum of its inputs. And again, these weights are randomly initialized at first, but during the training process, which we'll cover at a later time, the network will learn the optimal values for these weights, which lead to the most accurate predictions from the network. बोलो जरा। I don't know how to say it, so I'm just going to say it. I'm teaching a comprehensive course on वो Microsoft लाइट भी खोल दो। Excel. Welcome to this Deep Lizard series where we deliver bite-sized, practical, and कुछ नहीं, बस मैं के लिए काम पीछे नहीं। वो बताया आई थी, मैं मीटिंग में हूँ, अभी जाओ तुम। हाँ, अभी जाओ। अच्छा, अब हम किताब पे देखते हैं कि किताब में क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हम थे, हमने जो अभी हाँ, यहाँ पे थे। तुम लोगों को मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? आवाज कम तो नहीं आ रही? नहीं, सही आ रही है बिल्कुल। यहाँ तक हमने देख लिया था, याद है? अब हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग हाउ डीप लर्निंग वर्क्स इन 3 फिगर्स। ये कहता है कि यहाँ पे हम उस पॉइंट पे आ गए, हम अभी कनेक्ट कर रहे हैं इसकी जो भी लाइक मल्टीप्लीकेशन बैकएंड पे हो रही है, और उसको हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको सामने से कैसे देख रहे हैं। ये कहता है यू नो द मशीन लर्निंग इज अबाउट मैपिंग इनपुट्स। आपको पता है कि इनपुट्स को जो है मशीन लर्निंग क्या कर रही होती है? मैप कर रही होती है। जैसे कि अगर हम इमेज को देखें, हमारा टारगेट अगर है कि हमारा टारगेट कैट है, विच इज डन बाय ऑब्जर्विंग मेनी एग्जांपल्स ऑफ इनपुट एंड टारगेट्स। यू आल्सो नो द डीप न्यूरल नेटवर्क टू दिस इनपुट टू टारगेट मैपिंग वे आर डीप सीक्वेंस ऑफ सिंपल डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस। इसी चीज को जो हमारी मशीन लर्निंग समझती थी, हमारी जो न्यूरल नेटवर्क है वो कैसे समझता है उसको? वो लेयर्स के थ्रू समझता है। एंड दैट दीज डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस आर लर्न्ड बाय एक्सपोज टू एग्जांपल्स। अब हम देखते हैं कि कॉन्क्रीटली हम इसको किस तरीके से देखेंगे। द स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हाट अ लेयर डज टू इट्स इनपुट डेटा इज स्टोर्ड इन द लेयर्स वेट। ये कहता है कि जो हमारा इनपुट डेटा होता है वो वेट्स की सूरत में लेयर्स के अंदर स्टोर होता है, विच इन एसेंस आर अ ब्रंच ऑफ नंबर। और वो क्या बन जाता है हमारे, सॉरी, बंच ऑफ नंबर्स। वो क्या बन जाता है? वो हमारे नंबर्स में फॉर्म हो जाता है, वो नंबर्स में चेंज हो जाता है। In technical terms, we would say that the transformation implemented by a layer is parameterized. अब एक टर्म हम आगे बार बार पढ़ेंगे, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये कैसे जनरेट होते हैं? तो ये पहले ही बेसिक सी बात है कि पैरामीटर्स जो है वो लेयर्स के अंदर हम और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बाइस पढ़ेंगे, पैरामीटर्स पढ़ेंगे, और वेट्स आर आल्सो समटाइम्स कॉल्ड द पैरामीटर्स ऑफ द लेयर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जब कोई वेट्स की बात कर रहा है समटाइम्स उसको वो बाइस भी बोल रहे होते हैं, और समटाइम्स उसको क्या कह रहे होते हैं? पैरामीटर्स ऑफ द लेयर्स।
अगर लेयर्स के इन डेप्थ हम जाएं तो हम ये कहें कि लेयर्स के अंदर भी हम किसी चीज की बात कर रहे हैं तो 2-3 चीजें ही हमें नजर आती हैं। एक तो न्यूरॉन्स नजर आते हैं और वेट्स नजर आते हैं और यही सब चीजें होती हैं। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, पैरामीटर्स जो है वो क्या है, वो वेट्स ही है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट लर्निंग मीन्स फाइंडिंग अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेट। अब अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लर्निंग है क्या, हमारी जो न्यूरल नेटवर्क की लर्निंग क्या है, वो ये है कि हमारे पास कुछ सेट ऑफ वैल्यूज हैं कि भाई इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना है, उसको उससे प्लस करना है, जिससे हमारे पास वेट्स जनरेट होते हैं इन लेयर्स के, such that the network will correctly map example input to their associated target, ताकि ये लर्निंग करके जो उसको टारगेट मिला हुआ है वहां तक वो पहुंच सके। But here's the thing, a deep neural network can contain tens of millions of parameters. अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो डीप हमारा न्यूरल नेटवर्क है उसके पास क्या है, मिलियंस ऑफ पैरामीटर्स हैं। जाहिर है जब कोई पिक्चर जो है पिक्सेलेट होगी तो खुद अंदाजा लगाओ कि एक एक ही पिक्सल के कितने पैरामीटर्स बनेंगे और उसके बाद पूरी पिक्चर के कितने हो जाएंगे, और फिर वो बहुत सारी अगर पिक्चर्स हैं, लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है। और इसी तरह टेक्स्ट का भी होता है। फाइंडिंग द करेक्ट वैल्यूज फॉर ऑल ऑफ देम मे सीम लाइक द डाउटिंग टास्क। अब अगर इन सब की बिल्कुल करेक्ट वैल्यूज आपको पता करनी हो तो ये एक काफी ज्यादा मुश्किल टास्क हो जाता है और उस पर आप जो है ना कंफ्यूज भी हो जाते हैं, स्पेशली गिवन द मॉडिफाइंग द वैल्यू ऑफ वन पैरामीटर विल अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द ऑल अदर्स। अच्छा, अब जैसे बचपन में तुम लोग कभी जब मैथ्स करते होगे तो ऐसा होता था कि पहले अगर आपका पहला वाला जो स्टेप है अगर उसमें कोई गलती हुई है आपसे और आप उसको आगे लेके चलते रहे, अगला स्टेप भी उसी की वजह से गलत हो गया, उसका अगला वाला भी इसी की वजह से होता हो गया और उसका अगला वाला भी। तो इसी तरीके से पैरामीटर्स में फर्स्ट लेयर से सेकेंड लेयर में अगर कोई कोई वेट जा रहा है या वो उसकी वैल्यू जा रही है और वो वैल्यू गलत हो जाती है तो आगे की लेयर्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो ऑफ कोर्स उसके आउटपुट के ऊपर भी फर्क पड़ जाएगा, वो वैसा नहीं है आउटपुट होगा जो डिजायर्ड होगा। समझ में आ रही है बात? जी। अच्छा, यहाँ पे फाइंडिंग द राइट वैल्यूज फॉर दीज वेट, यहाँ पे ये वेट्स के थ्रू इसको बता रहा है। 2 जगह वेट्स जनरेट हुए हैं, इनपुट ये है और लेयर 1 है, लेयर 2 है और प्रिडिक्शन y1। प्रिडिक्शन, अच्छा, जब भी हम यहाँ पे इनपुट x और y की बात करेंगे तो x जो है वो कंसीडर करता है इनपुट को और y कंसीडर करते हैं आउटपुट को। लेयर्स में ये बता रहा है कि आपका डेटा ट्रांसफॉर्म हो रहा है। डेटा ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा है, उसी तरह मल्टीप्लीकेशन और उन सब चीजों से ट्रांसफॉर्म। ठीक है, टू कंट्रोल समथिंग फर्स्ट यू नीड टू एबल टू ऑब्जर्व इट। अगर आपने किसी चीज को भी कंट्रोल करना है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ऑब्जर्वेशन बनानी है कि कंट्रोल द आउटपुट ऑफ अ न्यूरल। मतलब आपका कंट्रोल अगर पूरे अपने नेटवर्क पे होगा तो ही तो आपका कंट्रोल उसके आउटपुट पे होगा कि आउटपुट क्या आएगा। यू नीड टू एबल टू मेजर हाउ फार दिस आउटपुट इज फ्रॉम व्हाट एक्सपेक्टेड। और फिर आपको ये बार बार यही बोलता रहेगा और ये बात बिल्कुल सही है कि आपने ये जरूर देखना हैगा कि जो आपका आउटपुट है और जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है उसके बीच में फर्क क्या है, उसमें डिफरेंस क्या हो रहा है। दिस इज द जॉब ऑफ द लॉस फंक्शन ऑफ द नेटवर्क। इस काम को हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम लॉस फंक्शन कहते हैं, जिसको वो आइडेंटिफाई करता है, डिटरमिन करता है। ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन। समटाइम्स इसको मैंने पढ़ा है कि इसको कॉस्ट फंक्शन कह रहे होते हैं, लेकिन वो फिर वही कंफ्यूज करने वाली बात है। अगर एक चीज को आप लॉस फंक्शन कह रहे हैं तो मेरे ख्याल में उसको वैसे ही कहते हैं ताकि जो नए सीखने वाले हैं कंफ्यूज ना हो। द लॉस फंक्शन takes the predictions of a network and the true target। वो क्या करता है, predictions ले लेता है कि ये वाले इसकी क्या predicted values क्या है और target क्या है। what you wanted the network to output and compute a distance score। और फिर वो क्या करता है, उसको compute कर लेता है कि इसके बीच में distance कितना है। capturing how well the network has done on this specific example, सी फिगर 1.8। अब यहाँ से ये अब जो मैं पहले भी ये काफी दफा ये बात बता चुकी हूँ, लेकिन इसको अब देखो कि ये वही चीज दोबारा बता रहा है। वेट्स है,
वेट्स के बाद इनपुट, जिसने जैसे इसने पहले बताया था, इनपुट है फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर है, प्रेडिक्टिव वैल्यू। अब यहाँ पे ये दो जगह जो है वो डिवाइड हो रहा है, टारगेट वैल्यू, प्रिडिक्शंस। और फिर यहाँ पे ये लॉस फंक्शन लगाएगा और उसके बाद बताएगा लॉस फंक्शन, लॉस स्कोर है क्या। समझ में आ रही है? ये इसने एक फ्लो चार्ट के थ्रू बता दिया। जो हम पढ़ रहे हैं वही चीज फ्लो चार्ट के थ्रू बता रहा है। मुश्किल हो रही है, समझ में आ रही है? मैम समझ में आ रहा है या मुश्किल हो रहा है? मैम हाँ हाँ बोलो। ये लॉस फंक्शन यही होता है ना, जैसे हम कोई न्यू चीज, मॉडल ट्रेन हो गया, न्यू चीज अगर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अगर वो गलत दे रहा है या सही दे रहा है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे कि ये न्यू डाटा पर कितनी सही चीजें बता रहा है और कितनी गलत चीजें बता रहा है। वही होता है हम्म, लॉस फंक्शन। तुम तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन वर्ड्स जो है ना वो थोड़े से डिफरेंट है। सही और गलत नहीं होगा, दोनों वैल्यूज जो है, दो वैल्यूज ले लेंगे। जैसे कि वही, फिर मैं बचपन की मिसाल दूं। बचपन में तुम लोगों ने कोई ऐसे वो किए थे, क्वेश्चंस किए थे कि मैं खालिद हूँ और मैंने यहाँ से 100, मेरा स्कूल यहाँ से 100 किलोमीटर पे है, और मैंने 100 किलोमीटर वो कवर किया, और वापस आते हुए एक फॉर एग्जाम्पल शॉप है जो उससे 37 किलोमीटर पे है। तो अब बीच का रास्ता बताएं कि उस शॉप से और उस स्कूल तक का बीच का रास्ता क्या है। किए थे ऐसे क्वेश्चंस? बिल्कुल सेम वे में हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं। एक वैल्यू है जो हमने टारगेट रखा है कि ये वैल्यू आनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि मेरे कैट्स एंड डॉग्स का एक मॉडल है, कि जो मॉडल मुझे ये देखना है कि किस हद तक ये कैट्स की तस्वीर को पहचान लेता है। उसी की मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ। अब मैं कहती हूँ वो 100 में से 98 पिक्चर्स को पहचान लेता है कि हाँ ये कैट्स है, तो को नहीं पहचानता। अब जब मैंने मॉडल ट्रेन किया तो उसकी जो एक्यूरेसी आ रही है वो 67% आ रही है। तो मुझे ये नापना है कि 67 और 98 के बीच का जो फासला है वो कितना है, उसकी क्या परसेंटेज है। और फिर जब मैं वो नाप लूंगी तो उसके बाद मैं देखूंगी कि भाई इसको मुझे अगर 67 से 98 पे लेके आना है तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको मैं करूं जिसके बाद ये 67 से 98 पे आ जाए। समझ में, अब समझ में आई है या दोबारा बताऊं? समझ में आ गई है खालिद, अदनान? मुझे तो आइए। जी जी मैम, क्लियर है। अदनान पूछ तो लेता है फिर चुप हो जाता है। बताओ, समझ में आई है? भूल यस, गए। क्लियर। मुझे नहीं आवाज आई, क्या कह रही है? आ गई है, आ गई है। गुड। अच्छा, ये फिर भी भूल जाओगे मुझे पता है, इसको हम जो है ना बार बार देखते रहेंगे तो फिर याद रहेगा। The fundamental trick in deep learning is to use this score as a feedback signal to adjust the values of the weight a little. अब अब जो हम ज्यादा जिस चीज की तरफ जाएंगे वही बात करेंगे कि हम फीडबैक सिग्नल एक चीज है कि जिससे हमें पता चलेगा कि हमें इसकी वैल्यूज को किस तरीके से सेट करना है। अच्छा, फीडबैक बैक सिग्नल भी एक टेक्निकल टर्म है। इसकी ये किस तरीके से अंदर काम कर रही होती है ये भी ये इसी चैप्टर में, आई थिंक इसी चैप्टर में आगे या इसके आगे बताएगा कि अगर, अच्छा ये कहता है इन अ डायरेक्शन दैट विल लोअर द लॉस स्कोर ऑफ द करंट एग्जांपल, दिस एडजस्टमेंट इज अ जॉब ऑफ द ऑप्टिमाइजर। अब हमने अभी क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था लॉस फंक्शन। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं ऑप्टिमाइजर की, कि ऑप्टिमाइजर किस तरीके से काम करता है, जिसकी वजह से हमारा जो लॉस स्कोर है, जैसे मैच का स्कोर होता है इसी तरह से यहाँ पे एक लॉस का स्कोर होता है। लॉस क्या है? वही प्रिडिक्टेड वैल्यूज और एक्चुअल प्रिडिक्टेड, हमारा जो टारगेट है, जो आउटपुट आना चाहिए, और जो एक्चुअल है उसके बीच में कितना फर्क है, उसको ये कह रहे हैं कि लॉस स्कोर क्या है। क्या वो 20% है, 30% है, 40% है? उसको वो एडजस्टमेंट करने के लिए एक चीज को यूज करता है। पहले तो फीडबैक सिग्नल लेता है, उसके बाद उसको ऑप्टिमाइजर को यूज करता है, विच इम्प्लीमेंट्स व्हाट कॉल्ड द बैक प्रोपिगेशन इन एल्गोरिथम। अब
बार बार तुम लोग वो जो है ना ये वाली टर्म यूज करोगे, ये दो ऑप्टिमाइजर्स तो यूज होंगे ही, वो उसमें यूज करोगे कि ये ऑप्टिमाइजर हम यूज करना है, ये वाला करना है। लेकिन एक चीज जो बार बार सर भी बताएंगे वो बैक प्रोपिगेशन है। बैक प्रोपिगेशन किस तरीके से होती है उसको हम टेक्निकली आगे देखेंगे, लेकिन ये अभी सिर्फ इसको एक फ्लो चार्ट के थ्रू बता रहा है। द सेंट्रल एल्गोरिथम इन डीप लर्निंग, द नेक्स्ट चैप्टर एक्सप्लेन। अच्छा, ये जो है ना नेक्स्ट चैप्टर में कह रहा है कि और इसको एक्सप्लेन करेगा, मेरे ख्याल में चैप्टर ऑलरेडी खत्म ही होने वाला है। अब देखो, अब इसका फ्लो चार्ट जो है डिफरेंट हो गया थोड़ा सा। और पहले हमारे जो है वो वेट्स थे, वेट्स के बाद इनपुट है, 2 लेयर्स हैं, प्रेडिक्शंस हैं, उसके बाद प्रेडिक्शंस और टारगेट वैल्यूज है, फिर उस पर उसने लॉस फंक्शन लगाया। लॉस फंक्शन लगाने के बाद इसने देखा कि लॉस स्कोर क्या आ रहा है, और लॉस स्कोर को देख के ये ऑप्टिमाइजर की तरफ चला गया है, और दोबारा ये वेट्स की तरफ जाएगा और उसके बाद लेयर्स की तरफ जाएगा। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है फ्लो चार्ट जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं ना, पहले एक छोटा सा पढ़ा, फिर बड़ा पढ़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये जैसे जैसे इसके अंदर फंक्शनैलिटी बढ़ती जा रही है, ये इसको जो है ना इन डेप्थ ज्यादा समझाता जा रहा है। अब ये कहता है कि इनिशियली द वेट्स ऑफ द नेटवर्क्स आर असाइंड रैंडम वैल्यूज, सो द नेटवर्क मेयरली इम्प्लीमेंट्स अ सीरीज ऑफ रैंडम ट्रांसफॉर्मेशंस। अच्छा, रैंडम के बारे में मैंने पहले भी बताया था। ये रैंडम वैल्यूज, रैंडम डेटा, रैंडमली किसी भी मॉडल को इनिशिएट करना। जैसे मैं तुम लोगों से बोल दूं कि भाई एक रैंडम नंबर मुझे कोई सा भी बताना, तो तुम कहोगे फॉर एग्जाम्पल 2 है रैंडम नंबर या 4 है रैंडम नंबर। इसी तरह से जब हम कंप्यूटर को टास्क देते हैं तो कंप्यूटर भी हमें इसी तरह से कोई रैंडम नंबर्स जनरेट करके देता है। अब ये कह रहा है कि पहले जो है वेट्स जो थे नेटवर्क के वो असाइन थे रैंडम वैल्यूज पे, तो नेटवर्क जो है ना सीरीज ऑफ रैंडम ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहा था, एक सीरीज में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहा था जो रैंडमली हो रही थी। नेचुरली इट्स आउटपुट इज फार फ्रॉम व्हाट शुड आइडली बी। अब एक चीज हम रैंडमली हमने जनरेट की है, तो हम उसको कैसे कह सकते हैं जो आउटपुट आएगा वो वैसे ही होना चाहिए जो हम चाहते हैं। तो और लॉस स्कोर जो है जाहिर सी बात है अकॉर्डिंगली वेरी हाई होगा। ये बात उसामा समझ में आई है तुम्हें या दोबारा बताऊं? मैं नहीं था मैम क्लास में, मुझे जरा गया था किसी काम से। अच्छा, और अदनान तुम बताओ। जी मैम। ये बात समझ में आई है? हाँ जी, आ गई है। बताओ, तुम बताओ क्या समझ में आया? मैम ये जो डायग्राम है, डायग्राम से नीचे अभी जो मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो रैंडम आपने वैल्यूज के बताया साथ कि जो। हम अगर हम रैंडम सी कोई वैल्यू देंगे तो उसकी ऑब्वियस सी बात है उसका लॉस जो स्कोर है वो ज्यादा होगा। बिल्कुल ऐसे इसीलिए ही है, हम बिल्कुल ऐसे। जबरदस्त, बोलो बोलो। इसीलिए हम जो एक्चुअल चीजें होती हैं ना वही देते हैं मॉडल को, ताकि हम जो एक्सपेक्ट हाँ, कर नहीं रहे नहीं हों नहीं वही नहीं नहीं हमारे नहीं नहीं पास नहीं आए। नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है कि हम एक्चुअल चीजें हम, अगर हमारे जो है वो मल्टीप्लिकेशंस बहुत हाई हो रही होगी, लाखों में जा रही होगी, और मुझे तुम्हें समझाना हो कि यार ये वाला फंक्शन इस तरह से करना है, तो मैं कहूंगी कि यार सिर्फ 0 ले लो, 0 1 ले लो, 1 और 2 ले लो, छोटी वैल्यूज देके मैं तुम्हें रैंडमली बता दूंगी कि भाई ये ऐसे 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 हो रहा है, उसके बाद तुम एक्चुअल वैल्यूज लगा दो। तो ये वही बता रहे हैं कि रैंडम वैल्यूज हम लगाएंगे तो ऑफ कोर्स जो हमारा लॉस स्कोर होगा ज्यादा होगा। बट विद एवरी एग्जाम्पल द नेटवर्क प्रोसेसेस, लेकिन हर एग्जाम्पल के साथ नेटवर्क तो प्रोसेस करेगा ना। द वेट आर एडजस्टेड अ लिटिल इन द करेक्ट डायरेक्शन, और वेट जो है थोड़ा थोड़ा करके जो है ना करेक्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहे होंगे, और उसके बाद जो है ना लॉस हमारा जो स्कोर होगा वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। दिस इज द ट्रेनिंग लूप। इसको कंप्यूटर की जबान में हम कहते हैं ट्रेनिंग लूप, which repeated a sufficient number of times, typically tens of iterations over thousands of example। जिसको क्या करता है ये कि ये रिपीट होगा, जनरली हम जो है ना इसको टेंस, किसको बोलोगे तुम लोग, 10 10 के आइट्रेशंस में हम करते हैं, और हमारी जो एग्जांपल्स होती हैं थाउजेंड्स की होती हैं। अब ये चीज जो है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारे पास हकीकत से नेचर से दूर है, इस तरह की चीजें हम एक्सपीरियंस नहीं करते, तो ये चीज थोड़ी मुश्किल से समझ में आती है। लेकिन हम ये जब करेंगे ना प्रैक्टिकली,
और रैंडम वैल्यूज को, रैंडम डेटा को और रैंडम चीजों को यूज करेंगे और उसके बाद हम इसके आउटपुट देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। यील्ड्स वेट वैल्यूज दैट मिनिमाइज द लॉस फंक्शंस। अब उसके साथ जो हमारी वेट वैल्यूज जो होंगी वो क्या करेंगी, लॉस फंक्शन को मिनिमाइज करेंगी। आर नेटवर्क विद द मिनिमल लॉस इज वन फॉर विच द आउटपुट्स आर एज क्लोज एज दे कैन बी टू टारगेट्स। और हमारा जो नेटवर्क है वो हमें मिनिमल लॉस शो करेगा। अंकल ने बोला मैं ना काम कर रहा हूँ, अंकल ने बोला चाय रख दो, तो वो भी वो रख दी। तुम रख दो। Once again, it's simple mechanism that once scaled end up looking like magic. और जब ये सारा कुछ काम हो चुकेगा और हमारा एक ट्रेंड नेटवर्क हमारे सामने आएगा तो हमें लगेगा कि ये तो बड़ा सिंपल मैकेनिज्म था, और जब ये स्केल हो गया, सारी चीजें इसमें प्रॉपर्ली जिस तरीके से होनी थी वो हो गई, तो ये एक मैजिक की तरह हमें नजर आएगा। लेकिन ये ऑफ कोर्स ये अभी हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, जब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे इसी बुक में इन्हीं सब चीजों को ये प्रैक्टिकली जो है हमें इम्प्लीमेंट करके दिखाएगा, तो हमें एक अच्छी चीज और समझ में आएगी। ऑल्दो डीप लर्निंग इज अ फेयरली ओल्ड, अच्छा इसको छोड़ दो, इसको इन पर्टिकुलर डीप लर्निंग हैज enabled the following breakthroughs all in historically difficult areas of machine learning. अब ये इससे जो मशीन लर्निंग से आगे जो ये बढ़ा है वो क्या कौन सा डिफिकल्ट एरियाज थे मशीन लर्निंग के जिसको डीप लर्निंग ने कवर किया है। ये क्या करता है, ह्यूमन लेवल इमेज क्लासिफिकेशन, मतलब नियर ही कह सकते हैं, कंप्लीटली वैसा तो नहीं होता ना जैसा कि एक वो कर सकता है, इंसान कर सकता है, लेकिन ह्यूमन के जैसा इमेज को क्लासिफाई कर सकता है। जैसे अगर हम 100 में से 100 पिक्चर्स को सही आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जनाब ये तो कैट है और ये डॉग है, लेकिन ये कुछ कुछ इंसानी उसके जो है वो लेवल के करीब है। फिर स्पीच ट्रांसक्रिप्शन भी इसी तरीके से जैसे इंसान कर सकता है उससे करीब है। इसी तरह से हैंड रिटन में तो थोड़ा मुझे लगता है दूर है, लेकिन इसमें लिखा है कि काफी करीब है, तो देखते हैं। ड्रामेटिकली इम्प्रूव मशीन ट्रांसलेशन, अच्छा मशीन ट्रांसलेशन को भी इसने काफी ज्यादा जो है इम्प्रूव किया है। टेक्स्ट टू स्पीच तो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है ऑलरेडी। डिजिटल असिस्टेंट सच एज गूगल असिस्टेंट, अमेजॉन एलेक्सा, अब आप लोग सभी जानते हैं सिरी है, गूगल असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट है, एलेक्सा है, और अब तो जो रोबोट आ गया है, वो जो रोबोट्स आ गए हैं उसमें वो देखा है तुम लोगों ने, सोफिया को देखा है? अगर सर्च कर सको तो सोफिया को देख के सर्च करना कि क्या मतलब बहुत जबरदस्त चीज है। वो पूरा जो है वो फिजिकली जो है वो एक बनी हुई रोबोट है, और वो काफी इंटेलिजेंट है, काफी ज्यादा। अच्छा, नियर ह्यूमन लेवल ऑटोनोमस ड्राइविंग, अब आप लोगों ने टेस्ला वगैरह का सुना है, सेल्फ ड्रिवन कार्स के बारे में सुना होगा कि वो किस तरीके से काम कर रही है। तो ये कह रहा है ये सारा कुछ जो है हमारे पास न्यूरल नेटवर्क को कंसीडर करके ही पॉसिबल हुआ है। इम्प्रूव एड टारगेटिंग एज यूज गूगल, बाइडू एंड बिंग। अब जैसे एड टारगेटिंग है वो तुम लोगों को पता है, जो SEO वगैरह पॉसिबल हुआ है वो भी AI के थ्रू ही हुआ है। इम्प्रूव सर्च रिजल्ट ऑन द वेब, अब आपको वेब के ऊपर रिजल्ट्स आप 5 साल पहले वाले देख लो, 10 साल पहले वाले, और अब देख लो कि किस तरीके से आपके वेब के रिजल्ट्स हैं जब आप सर्च करते हो। और अगर हम सर्च इंजन GPT के बारे में सोचें तो फिर तो वो तो और ही उसमें फंक्शनैलिटी भी लग गई है। एबिलिटी टू आंसर नेचुरल लैंग्वेज क्वेश्चंस, अब ये आंसर कर सकता है नेचुरल क्वेश्चंस को। और सुपर ह्यूमन गो प्लेइंग, आई थिंक ये किसी गेम वेम के बारे में वो हो रहा है। ह्यूमन टू कंप्यूटर इंटरेक्शन जो गेमिंग के थ्रू होती है, आई थिंक। वी विल स्टिल एक्सप्लोरिंग द फुल एक्सटेंट ऑफ द डीप लर्निंग कैन डू। अब हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि हमारे पास डीप लर्निंग में क्या पोटेंशियल है, हम उससे क्या चीजें कर सकते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं या हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ एग्जाम्पल्स है, हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और हमें उसका पोटेंशियल खुद आइडेंटिफाई करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये तुम लोगों को याद रखनी है हमेशा। तो मैं कोई भी यहाँ पे बुक पढ़ा के स्पून फीडिंग करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, क्योंकि हम सारा
हम जो सारा करेंगे वो रिसर्च वर्क होगा। एक मिनट रुकना। हम जो काम कर रहे हैं वो रिसर्च वर्क की तरह से ही होगा। हम सिर्फ एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स को रियल वर्ल्ड से तुम लोगों ने कनेक्ट करने की कोशिश करनी है कि इस एग्जाम्पल में, इस कोड में अगर ये काम हो रहा है तो रियल वर्ल्ड की क्या प्रॉब्लम है, तो क्या मैं ये बना सकता हूँ। फिर तुम वो जब बना के देखोगे तो मे बी तुम्हें लगे यार ये तो पहले से बना हुआ था, लेकिन अगर वो तुमने खुद से बनाया है, वो नेटवर्क तुमने खुद डिजाइन किया है, तो बड़ी बात है। आई थिंक ऐसा होना शुरू हो जाए तो। अच्छा, ये कहता है वी हैव स्टार्टेड अप्लाइंग इट विद कैन बी with great success to a wide variety of problems that were thought to be impossible to solve just a few years ago. अब हमारे पास variety of problems की सक्सेसफुल लाइक आउटपुट्स मौजूद हैं, जो कि कुछ अर्से पहले बिल्कुल नामुमकिन थे। ऑटोमेटिकली ट्रांसक्राइबिंग द टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट होल्ड इन वेटिकन एपोस्टोलिक आर्काइव डिटेक्टिंग। अच्छा, इसमें ये बता रहा है कि हमने क्या किया है, हमने ट्रांसक्राइब किया है जो एंशियंट हमारे पास स्क्रिप्ट्स थे, उनको हमने क्या किया है, क्लासिफाई किया है प्लांट्स की डिजीज को। और हमने स्मार्टफोन्स में बहुत सारा काम किया है। हमने ये असिस्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट जो है वो एग्जाम्पल कैंसर के डिटेक्शन के लिए जो हमारे पास मेमोग्राम्स होते हैं या वो होते हैं जो पिक्चर फॉर्म में हमारे पास एक्सरेज वगैरह होते हैं, उसमें जैसे ग्रे स्केल वैल्यूज भी जिसको हम ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं, और आरजीबी जो कलर्ड होते हैं, उनको भी हम जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो मेडिकल की टर्म में इमेजिंग डेटा कहलाता है। मेडिकल से जब हम डेटा उठाते हैं तो हम उसको फिर एक्सरेज नहीं कह रहे होते हैं, इमेजिंग डेटा कह रहे होते हैं। मेडिकल इमेजिंग डेटा, प्रिडिक्टिंग नेचुरल डिजास्टर सच एज फ्लड। अब आप प्रिडिक्ट, जैसे हम काफी दफा काफी मॉडल्स के ऊपर बात कर चुके हैं कि जब हम वेदर प्रिडिक्ट कर सकते हैं 5 साल का डेटा लेके, 10 साल का लेके, 50 साल का लेके, तो हम फ्लड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, हरिकेन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये कब आने वाला है। अर्थक्वेक्स के ऊपर जो है जैसे जियोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, उनसे हम डेटा लेके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। With every milestone, we are getting closer to an age where deep learning assists us in every activity and every field of human endeavor. ह्यूमन से रिलेटेड और हमारी हमारे हमारी फिजिकल चीजों से रिलेटेड भी और हमसे रिलेटेड भी जितनी भी चीजें हैं, इनके बारे में डीप लर्निंग जो है वो काम कर रहा है, हमें असिस्ट कर सकता है। आप पान की दुकान से लेकर हवाई जहाज, पहाड़, किसी चीज के ऊपर भी डीप लर्निंग का कोई भी मॉडल जो है जो आपको लगता है ये इसका प्रॉब्लम है, उस पर लगा सकते हो। डेटा होना चाहिए आपके पास। साइंस, मेडिसिन, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड इवन आर्टिस्टिक क्रिएशन। अब आर्टिस्टिक क्रिएशन के बारे में कोई मुझे बताएगा कि आर्ट में क्या काम, किसी ने कुछ देखा है इसमें डीप लर्निंग में आर्टिस्टिक कोई काम हुआ हुआ उसामा के अलावा? दूसरा कौन मौजूद है? अदनान मौजूद है। अदनान, तुमने आर्ट में कुछ देखा है इसमें? मैम ये चीजें हैं जो हम प्रॉम्प्ट्स देते हैं, जैसे ये मिड जर्नी है वो भी, और बहुत हम्म। सारे हैं। उन्हें प्रॉम्प्ट्स देते हैं, जैसे भी देते हैं वो हमें इमेज जनरेट करके दे देते हैं। आर्ट टेक्स्ट जिस हाँ, हाँ, एग्जैक्टली exactly। और बहुत सारी चीजें हैं, हम पर्दों के डिजाइन बनवा सकते हैं इससे। हम इससे बहुत कुछ बनवा सकते हैं, हम इससे सिंगिंग करा सकते हैं, म्यूजिक जनरेट करा सकते हैं, आर्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम इससे करा सकते हैं। अच्छा, 1 मिनट में मीटिंग खत्म हो जाएगी, उसके बाद तुम लोग मीटिंग एक दफा और ज्वाइन कर लेना। आ, मेरी आवाज सही आ रही है? अच्छा, अब ये बहुत सारी दो दो तरह की चीजें होती हैं जिसको लोग बोलते रहते हैं। एक तो डीप लर्निंग एआई जो है वो दुनिया को खत्म कर देगी। दूसरी चीज बोलते रहते हैं ये तो शॉर्ट टर्म हाइप है, बस थोड़े दिन चलेगा और खत्म हो जाएगा। तो ये दोनों ही चीजें इंतहाई नामुमकिन इसलिए है कि पहली चीज, अगर दुनिया खत्म होगी तो एआई की वजह से नहीं होगी, मैम इंसानों ये की वजह से। आप माइक से थोड़ा दूर आपने हैं। लूप लगाया, जैसे तुमने अदनान ने क्वेश्चन किया था वाइल लूप के बारे में। आपने लूप लगाया तो आप उस लूप को, अगर आपको बाहर निकलना है, कंट्रोल सी करके बाहर निकल सकते हैं। तो कंट्रोल सी किसने किया? इंसान ने किया। फिर आप ये कहेंगे दुनिया को जो हमारे सारे वो हैं न्यूक्लियर वेपन से खत्म कर सकते हैं, किसने बनाया? इंसान ने ही बनाया।
तो जब तक इंसान उसको एक्टिवेट नहीं करेगा, चाहे भले से एक बटन ही क्यों ना दबाना हो, या उस बटन को ऑटोमेट ही क्यों ना करना हो कि भाई ये बटन 4 साल बाद खुद ब खुद दब जाए, तो वो इंसान ही करेगा। तो जब तक इंसान कोई कमांड उसको ऐसी नहीं देगा जो कि खतरनाक हो, उस वक्त तक